of awareness regarding POSCO Act among school children's organization Pratibha Education and Welfare Society, Chhattisgarh, Assistant Project Worker, Agency Tribal Cooperative Marketing and Development Federation, India, Region Basa, Chhattisgarh, Establishment of Producer Organization on Non-Timber Forest Produce NTFP, Skill Development of Tribal Women on Value of Addition of NTFP, Organization Chhattisgarh Mahila Manch, Gujarat, Assistant State Coordinator, Gujarat State Commission for Protection of Child Rights, GSCT PCR. He did research and development, study of Juvenile Justice Act 2015 and protection of children from sexual offences, POSCO Act 2012. Assistance of developing research methodology, assistance on developing research tool, analysis on data collected, research work on research dissertation titled A Study on Effectiveness of Intervention Program, Shetua, on Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, among school teachers or child care institution, social volunteers of Vadodara City, research paper on status of POSCO Act 2012, child sexual abuse in district Vadodara, research paper on cooperatives and sustainable development goals, research paper on role of society groups towards protection of children rights in state of Chhattisgarh. Thank you. Thank you so much, Farli, for a well-detailed introduction. Now, on the behalf of the School of Social Work, I request Mr. Siddharth Pandey sir to address us about the story of social train. Okay. Yes, Siddharth. Thank you very much, ma'am. And ऐसा लग रहा था कि मेरा जो प्रोफाइल है वो पूरा रीड मेरे सामने हो रहा है, and I was in something कि अब मैंने जो लिखा उसमें कहाँ मिस्टेक है, I think मुझे को समझ में आ रहा है ना? But it's okay. There should be a small introduction for me. Like I am a professional social worker, and मैं जो भी हूँ अर्चना मैम, प्रियंका मैम की वजह से हूँ, है ना? And नहीं, I'm really glad to. I really want to say this on behalf of everything. Before I start, I really want to. I had also asked Nadeem sir to convey this thing. I really want to know, and I feel मैम कि थोड़ा talkative रहेगा. I really want कि लोग भी मुझसे थोड़ा बात करें if they are all okay, and really want कि सब लोग अपने अपने कैमरा थोड़ा on कर लें. It will be wonderful because this topic is really interesting. We all should know about this क्योंकि ये बहुत ही important चीज़ है. Not only important, very interesting है. How you will manage these things, ठीक है? तो जितना हो सके, जो लोग हो सकता है सब लोग प्लीज बी प्रिपेयर कि you can ask me question afterwards also, but जब मैं कहूँ तो प्लीज एक बार मुझे आप आंसर जरूर करें, है ना? I really want to know what is social entrepreneurship. हिंदी में इसे सामाजिक उद्यमिता कहते हैं. तो इसके बारे में क्या जानते हैं या फिर आप क्या सोचते हैं? What is this kind of thing? बहुत बड़ा. एक तो उसका स्पेलिंग करने के लिए गूगल करेक्ट चाहिए रहता है बीच में. इसका नाम ही इतना खतरनाक है ना? मुझे भी नहीं आती है, मुझे भी पूरा नाम नहीं आता है, इसका अच्छे से स्पेलिंग नहीं आती, इसलिए मैं हिंदी में बोल देता हूँ, है ना? आई एम वेरी मच ओके इन हिंदी. सो मैं जानना चाहता हूँ, आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज बेसिकली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. कोई एक दो लोग अगर आंसर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सिद्धार्थ, मैं भी ट्राई कर सकता हूँ? श्योर. बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैम भी मेरे को बताएं तो मुझे भी थोड़ा सा आई रियली वांट टू नो द पर्सपेक्टिव, क्योंकि आई एम वर्किंग अ लॉट, लेकिन मुझे भी थोड़ा पर्सपेक्टिव ठीक करना है अपना. So basically, social entrepreneurship is an approach by an individual in which they always try to develop, implement solutions to social, cultural, and environmental issues. So that is basically a social entrepreneurship in which you try to develop and implement the same things. ठीक है. और कोई बस सिंपल लैंग्वेज में कोई बात करना चाहेगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा. or anybody can share on only entrepreneurship. What is entrepreneurship? Komal? So basically, sorry. So basically, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो
मेरे लिए पर्सपेक्टिव है इट्स बिट डिफरेंट बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप मेरे को ऐसा लगता है कि किसी के पास जो एक आइडिया है, एक यूनिक आइडिया है और वो उसको लेकर एक चेंज ला रहा है, चाहे वो सोसाइटी में हो चाहे उसकी खुद की लाइफ में हो, और उसने एक बिल्डअप किया अच्छा, तो इट्स अ एंटरप्रेन्योर। उसका एक आइडिया डिफरेंट था, लोगों से अलग था और उसने कुछ हटके किया। सो आई थिंक Okay. Anybody else? Ma'am, you can also share something. May I, sir? Yeah, sure. Please continue. Sir, entrepreneurship, अगर हमारे पास कोई आइडिया है जिससे सिर्फ हम नहीं, हमारे अलावा कुछ और लोग भी जुड़ पाए और उनका भी कुछ अच्छा हो, so it can be said entrepreneurship. मतलब entrepreneurship is not about individual. Mm-hmm. अगर सोशल उसमें नहीं लग रहा है फिर भी वो एक के बारे में नहीं है। करेक्ट। तो ये कलेक्टिव थॉट है। यस, इसमें चाहे किसी एक का मतलब किसी एक का थिंकिंग हो, कुछ एक का इनोवेशन हो, बट वो सबके लिए होता है, जो सबके लिए बेनिफिशियरी है, वो थॉट की वजह से उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। ठीक है। मैम, आई विल वांट टू आस्क यू कि वो मीटिंग में मुझे अगर कुछ प्रेजेंट करना है, सो यहाँ पे मेरे प्रेजेंटिंग का वो नहीं आ रहा है। एक मिनट, मैं आपको प्रेजेंटर बनवा देती हूँ। आई जस्ट वो निकल जा रहे थे, कोई एक दूसरे को रिमूव कर रहे थे। यू नो हाउ स्टूडेंट्स आर एंड हाउ यू गाइज वर्क, सो मैंने उनको डिसेबल कर दिया था। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल जस्ट मेक यू द प्रेजेंटर। वैसे मैम हमारे साथ ऐसा ऑनलाइन वाला सीन कभी था ही नहीं, हम सीधा क्लास पे ही नहीं आ पाते थे। नहीं आई रियली वांटेड मैम कि एक बार अर्चना मैम लास्ट में कुछ बोले हमारे बारे में, बहुत दिन हो गए ऐसा कुछ सुने। Just 1 minute, I can't find you in the meeting list only. You were presenting and okay, see. हाँ, Give me 1 minute. सही है। Okay, yeah. So guys, I really want to share something about the entrepreneurship. Yeah, sorry. You should be able to do it now. हाँ मैम, आ गया। थैंक यू। सो आई रियली वांट टू शेयर समथिंग लाइक एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग। आप सबने सब लोग ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो सीरीज वगैरह आती हैं, सब लोग कुछ ना कुछ तो फॉलो करते होंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पिक्चर्स। किसी ने देखा है टीवीएफ पिक्चर्स? टीवीएफ पिक्चर्स के नाम से एक वेब सीरीज है जो द वायरल फीवर करके एक ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म में उसने चालू की थी। दिस इज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। कैसे दोस्त लोग मिलके अपने सब जॉब्स वगैरह छोड़ के एंड दे स्टार्ट अप एन आइडिया, एक आइडिया पे कंक्लूड करते हैं वी शुड कलेक्टिवनेस के साथ हमको साथ में मिलके एक कंपनी चालू करनी चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करेगा। और वो सब अपने अपनी जॉब्स छोड़ के, अपना सब काम धंधा छोड़ के, जहाँ पे उनको किसी को 50,000 रुपए तनख्वाह होती है। लास्ट जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी तो मेरी तनख्वाह 48,000 रुपीज थी। बट आई ड्रॉप माई जॉब। मैंने अपनी जॉब को छोड़ा एंड मैं अपने आइडिया के पीछे गया। एंटरप्रेन्योर का देखो, जो एम्प्लॉय होता है एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, एंटरप्रेन्योर को सैलरी नहीं मिलती है। एंटरप्रेन्योर रिस्क उठाता है तो उसको प्रॉफिट मिलता है। बस हमारी कोई सर्टेनिटी नहीं है। हमारी कंपनी बंद हो गई तो कौन किसका कुछ नहीं, लेकिन उसका सबसे ज्यादा खामियाजा हमारे एम्प्लॉयज को उठाना पड़ता है। इसलिए वो रिस्क फैक्टर हमेशा एक एंटरप्रेन्योर के लिए रहता है। तो आई कैन से माई सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर। नाउ आई एम रनिंग अ कंपनी जिसमें हमारे 2-3 प्लांट्स हैं अभी। उसके अलावा हमारे मार्केटिंग की टीम है। माय यंगर ब्रदर इज माय नेक्स्ट डायरेक्टर, जो मेरे साथ प्लांट मैनेजर के रूप में काम करता है। उसके अलावा नाउ बेसिकली आई एम रनिंग अ कंपनी जिसके अंदर भी 100+ एम्प्लॉइज हैं, जो कि रेगुलर वे में जिनको कुछ ना कुछ, और तो वो रिस्क मेरे ऊपर है, मेरे कंधे पे है। अगर हमसे कुछ कहीं पर भी गलती हो गई, 100 लोगों की महीने की तनख्वाह नहीं जाएगी और हमको वो तनख्वाह मिले ना मिले। तो दिस इज द एंटरप्रेन्योर कि उसको अपने रिस्क के दम पे, आइडिया के दम पे सबको कलेक्टिवनेस के साथ जोड़ के एक नए बिजनेस को आगे लेकर जाना पड़ता है। अब इसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आ गया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वहीं से मैं इसमें जुड़ा। I really want to do social work for the society from the bottom of my heart. जब से मैं social work में आया, not only at the time of
जब मैंने MSW चालू किया नवरत्ना में, बट वे बिफोर मेरे मन में ये था कि नहीं मुझे गरीबों के लिए कुछ करना है, मुझे स्ट्रीट में बच्चों के लिए कुछ करना है, आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर ओल्ड एज पीपल। सी बचपन से मेरे अंदर हमेशा ये थॉट है, आई विल रियली शेयर, अगर टाइम बचा तो ऐसा क्यों थॉट मेरे अंदर आया, बिकॉज ऑफ माय मदर, शी इज माय ओनली इंस्पिरेशन टिल नाउ, शी इज माय guiding principle for me, and apart from that she is the only one जो मेरी इंस्पिरेशन भी है और मेरी कॉम्पिटिटर भी है। उन्होंने जितना काम किया उतना आई डोंट थिंक सो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। शी इज ऑल्सो बिग पर्सनालिटी, अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, एंड ऑलवेज वो मेरी बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर रहेगी। तो उनकी वजह से मेरे अंदर बहुत ऐसा कुछ आया है कि मुझे कुछ करना है, बट मुझे जो चेंज मेरे लाइफ में वो वही मिला जिस बेंच में अभी आप लोग बैठते हैं ना नवरत्ना में, दिस इज द ट्रुथ। मुझे मेरे लाइफ का वो चेंज उसी बेंचेस में मिला है। यू नो व्हाई? बिकॉज दो ही क्लासेस हुई है मुझे जितनी याद है, 2 ही क्लासेस हुई है मेरी जो मैंने अच्छे से अटेंड की है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे। एक सोलंकी सर की हुई थी और दूसरी जो हुई थी फिरदौस सोलंकी सर की हुई थी, और दूसरी अर्चना मैडम ने हमको बैठा कर कहा था कि तुमको एक छोटे से पीस ऑफ पेपर में अगर कोई नई कंपनी चालू करनी हो तो उसमें क्या क्या काम करोगे वो लिख के मुझको बताओ। And I was a very bad student, मुझे पता है मैं अपने क्लास का सबसे गंदा स्टूडेंट था, तो मैं सोता रहता था क्लास में, बट उसके बाद भी आई पिक अप अ पीस ऑफ पेपर क्योंकि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा वो कि मैडम ने ऐसा कैसा टास्क दे दिया जो कि मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं अपनी लाइफ में। मैं कभी बिजनेस में आई डोंट वांट टू डू बिजनेस इन माय लाइफ, कभी बिजनेस नहीं करना चाहता था मैं कभी जॉब नहीं करना चाहता, आई वांट टू डू ओनली सोशल वर्क, पता नहीं कैसे, और वो कैसे कमाऊंगा क्या करूंगा मुझे पता नहीं था, वो धीरे धीरे करके वो चेंजेस आए। सो आई टेकन अ पीस ऑफ पेपर और मैंने एक चप्पल इंडस्ट्री पे काम चालू किया क्योंकि मुझे कोल्हापुरी पहनना पसंद है। तो अगर कोल्हापुरी चप्पल मुझको बनानी है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वो पीस ऑफ पेपर अभी भी मेरे पास है और मैंने गंदे से पुराने से मेरे डायरी के पीछे लिखा था, वो अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। और वहां से फिर मेरा माइंड चेंज होता गया और मुझे वो फिरदौस सर की क्लास अच्छे से याद है, उन्होंने कुछ वीडियोस दिखाए थे मुझको। देयर वाज अ वीडियो ऑफ अफ्रीकन कंट्री कि वहां पे एक ऐसा एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वहां पानी की बहुत दिक्कत होती है, यू नो दैट, पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, वहां पानी बहुत प्यूरिफाइड पानी नहीं मिलता आपको, तो बच्चों को पानी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो सिंपल सोल्यूशन से निकाला कि एक जैसा स्ट्रॉ होता है ना, स्ट्रॉ में बीच में मिनरल्स डाल दिया उसने, बीच में ऐसा मोटा स्ट्रॉ बनाया, उसमें बीच में मिनरल्स है, कोई भी पानी में बच्चा वो स्ट्रॉ डाले और फिर जैसे ही वो सक करेगा तो पानी फिल्टर होकर उसको मिलेगा। सो आई थॉट वाओ दिस इज वेरी गुड आइडिया। एक और मुझे वीडियो दिखाया गया कि राजस्थान में पानी की बहुत दिक्कत होती है ना, पानी का ऐसा लेके बड़ा मटके लेके महिलाएं जाती हैं, तो एक ऐसा सिंपल आइडिया एक एंटरप्रेन्योर लगाया कि क्यों ना हम एक बॉक्स बना दें, मतलब एक जैसा कि वो टब होता है, टब बोल रहा हूँ, ड्रम होता है, ये ब्लू कलर का ड्रम होता है, प्लास्टिक ड्रम, और उसमें उसने सामने कुछ लोहा और कुछ अच्छा लकड़ी वकड़ी लगा के दी, पानी उसमें भरो और उसको ऐसे एक हैंडल लगा दिया और हैंडल से ऐसे धक्का मारते मारते ले जाओ, 5 किलोमीटर वो अपना ऊपर रखने से अच्छा है एक बार में 20-25 लीटर पानी भर लो ड्रम में, और ड्रम को आप ऐसे फ्रिक्शन करते हुए और घसीटते घसीटते अपने घर तक ले जाइए। सिंपल आइडिया, वेरी सिंपल आइडिया। इससे क्या हुआ, इन दोनों चीजों से क्या हुआ, लोगों का भला हुआ बहुत ज्यादा, उनको कमोडिटी मिलती गई, और वो चीजें, एक और बात थी, वो चीजें वो वहीं बनाते थे आसपास की जगहों पर ताकि उनको सस्ता पड़े, तो उनको वहां के लोगों को रोजगार भी मिलता गया। सो दिस इज दी ये मेरा चेंजिंग था फॉर मी। और एक और बात है, सोशल वर्क इज नॉट हेल्पिंग, ये मुझे नवरत्ना ने सिखाया है। सोशल वर्क इज नॉट हेल्पिंग, आप हेल्प नहीं करेंगे किसी को। सोशल वर्क इज एक ब्रिजिंग पैटर्न है, एक ब्रिज बनाना है आपको बीच में सर्विसेज की, ताकि जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनको प्रिविलेज से प्रिविलेज तक वो पहुंचे। वो कैसे पहुंचेंगे उसका आप राह उनको दिखाएंगे। भूख लग रही है खाना दे दो, नो, दिस इज नॉट सोशल वर्क। भूख लग रही है तो उस व्यक्ति को पानी वानी पिला के खड़ा करो और खुद अपना वो खाना कैसे बना पाएगा वो उसको सिखाओ, दिस इज सोशल वर्क। एंड नाउ अगर इस आइडिया को मुझको
एक बड़े लेवल पे लेकर जाना है जिससे सही में एक चेंज आए, तो जब तक जेब में मनी भाई नहीं रहते हैं तब तक तो होता नहीं है ना। अकेले कैसे करेंगे? मैंने कोशिश की थी इन बड़ौदा, मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव यहाँ पे अभी भी चलता है बच्चों के लिए, बट आई हैड स्ट्रगल्ड अ लॉट ऑफ फॉर दैट, क्योंकि फंड तो होते ही नहीं थे। कहां से आएंगे फंड? लोग भी कितना देंगे? तो एक वो रेगुलर एक समझ में आया कि जब तक बिजनेस पर्सपेक्टिव साथ में नहीं आएगा तब तक सोशल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सो यहीं से एक चेंजेस आया। एंड एक कोट है जो मैं हमेशा स्वामी विवेकानंद का अपने साथ रखता हूं। आई रियली वांट टू शेयर दैट कोट कि ऑल द वेल्थ ऑफ वर्ल्ड कैन नॉट हेल्प वन लिटिल इंडियन विलेज इफ द पीपल आर नॉट टॉट टू हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम लोगों को ही नहीं सिखा सकते कि वो खुद की हेल्प कैसे करें, तो आपका पूरा वेल्थ जो है वो बेकार है। ओके वेंट टू रायपुर, कोविड की वजह से मुझे जाना पड़ा, और वहां जाने के बाद फिर आई वॉज, मेरे प्रोफाइल में भी है, जब मैं MSW में आ रहा था उसके पहले भी आई वॉज वर्किंग इन छत्तीसगढ़, वहाँ के ट्राइबल एरियाज में। तो वहाँ के ट्राइबल एरियाज में मैं वॉलंटियरिंग करता था विद रामकृष्ण मठ, जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा चालू किया गया था, उसके साथ विवेकानंद केंद्र के साथ, एंड माय ओन NGO जो वहाँ पे छत्तीसगढ़ में काम करती है, उनके साथ मैं वॉलंटियरिंग और उसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंस का काम करता था कि किस तरीके से गाँव में हम लाइवलीहुड जनरेशन क्रिएट करें। एक लेटेस्ट मूवी आई है पुष्पा, देख ली क्या सबने देख ली पुष्पा? यस सर। यस सर ना, वेरी गुड। ऐसे टॉक बीच में बोलते रहना, मेरे को लगा कि मैं भी बोर कर रहा हूँ क्या आप लोगों को। सो दिस पुष्पा, तो पुष्पा में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा, मैं आपको बताता हूँ। एक मेरे उसमें प्रोफाइल में उसने लेडी ने पढ़ा अभी की लास्ट में, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट है। हम खा रहे हैं चावल, हम खा रहे हैं दाल, हम आटा खाते हैं, हम मक्का, मेज होता है, देयर आर सर्टेन थिंग जो एग्रो फूड से रिलेटेड है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नॉन एग्रो है, लेकिन उसको भी हम रेगुलर यूज करते हैं, जो कि फॉरेस्ट से निकलती है, जिसकी खेती नहीं होती है, जिसके जंगल ही जंगल है बहुत अपने देश में, है ना। अपना देश जो है वो बहुत वेरी वेरी डेंस, हमारे देश का बहुत डेंस फॉरेस्ट है। तो हमारे पास बहुत जंगल है, बहुत हैवी जंगल है। उस जंगल के अंदर कई सारे पेड़ हैं भिन्न प्रजाति के, और उन पेड़ों के जो तने हैं, जो उनका मेन ट्री है, उसका जो लीव्स हैं, उसके जो फल है, उसका जो जड़ है, ईच एंड एवरीथिंग इज यूजफुल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल यूज शिया बटर फॉर मॉइस्चराइजिंग। शिया बटर बहुत हैवी होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। So there's one seed called साल, SAL, साल सीड इन छत्तीसगढ़ के जंगल है, उसके जंगल मतलब हेक्टेयर्स, 2000 हेक्टेयर्स में साल के सीड्स है, साल का जंगल है, वेरी वेरी वास्ट। वो साल का सीड जब गिरता है नीचे, तो वहां के जो गांव वाले हैं उनको हम कहते हैं गैदरर्स। क्या कहते हैं? गैदरर्स। दे आर नॉट एग्रीकल्चरर्स, मतलब वो फार्मर नहीं है, वो जंगल नहीं उन्होंने उगाया, जंगल तो सदियों से वहां पर है ना। वो गैदरर्स है, वो पिक करते हैं, जो बीज नीचे गिरता है उसको पिक करते हैं, पिक करके उसको वो कोचियाज, एक टर्म है छत्तीसगढ़ में नॉर्मली, कोचिया यानी मिडिलमैन। जो मिडिलमैन होता है वो गांव में उस बीज को उनसे ले लेता है इन अराउंड 15 to 18 रुपीज kg ओनली। वो वहां से लेकर जाता है, देयर समथिंग, वहां पे उनकी मंडीज होती है, मंडी में वो बिकता है 25-30 रुपीज kg मैक्सिमम। वहां से वो निकलता है, वो ट्रेडर्स के पास जाता है, मिडिलमैन और बड़े मिडिलमैन के पास जाता है, मुंबई और गुड़गांव के पास की बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो वहां पे जाता है। और वहां जाने के बाद जब उसका प्रोसेस होता है इंडस्ट्री के अंदर, उसी साल बीज के अंदर से, सीड के अंदर से साल बटर निकलता है, एंड दैट साल बटर इज द सब्स्टिट्यूट फॉर शिया बटर, which cost around 3000 rupees kg. तो एक सिर्फ नॉर्मल 15-18 रुपीज kg जो गांव में पूरे साल पूरे सीजन में महिलाएं
और वहां के गांव के लोग उस पूरे जंगल की रक्षा करते हैं। वहां पे एक प्रथा है कि जंगल को मरने नहीं देते वो, और वहां से वो इकट्ठा करके लेकर आते हैं, और ये पूरा सर्कल उनको उनको अनऑर्गेनाइज तरीके से चलता है, और फिर लास्ट में वो शिया बटर बनता है, और वही मॉइस्चराइजिंग कंपनीज उसको खरीदती हैं और फिर वो हम लोग को बेचती है। इस तरीके से सबसे बड़ा किसी का अगर लॉस होता है तो वो उस गांव वालों का होता है। फेडरल रोशर हम चॉकलेट खाते हैं, उस चॉकलेट के अंदर जो बटर यूज होता है दैट इज साल बटर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट छत्तीसगढ़ में इसके अलावा टैमरिंड होता है। टैमरिंड इमली, इमली पता है ना सबको? तो इमली का बहुत बड़ा सिंडिकेट है, जिस तरीके से वो पुष्पा में उसका सिंडिकेट था ना, रेड सैंडलवुड का। हाँ, ऐसा हमारे पास भी बहुत बार हमारे यहाँ पे घोटाले होते हैं इसके। एमएसपी रेट फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एक स्कीम है इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर टैमरिंड इज 35 रुपीज केजी। गांव वालों से मिडिलमैन 20 रुपीज 18 रुपीज केजी में उठा लेते हैं। और यही चीज जब वो लास्ट में मैगी तक जाती है, क्योंकि मैगी बनाता है, पिचकू बनती है मैगी का, मैगी जब उसको लेता है, खरीदता है, वो 95 रुपीज केजी में खरीदता है। और उसके बाद वो जो इमली पिचकू बना रहा है उसकी हालत देखो आप। जब हमने हमारी कंपनी उसकी टेस्टिंग कराई, उसमें इमली का परसेंटेज इज ओनली 2%। अपार्ट फ्रॉम दैट इज एसिड, जिसको हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं। आप देखना एक जिंक जैसा, उसमें आप जब उसको टेस्ट करेंगे तो आपको ऐसा जिंक जैसा फ्लेवर आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फिलिको एसिड। क्योंकि जब इतना महंगा उनको रॉ मटेरियल वहां मिलता है, वो इतनी महंगे तरीके से खरीदते हैं, और फिर उसको यानी इसके बीच में जो पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर चल रहा है। सो माय आइडिया कम्स फ्रॉम हियर कि क्यों ना हम इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट वी हैव टू डू समथिंग। अच्छा, इसके अलावा हाउ आई कनेक्टेड विद द जंगल्स इज जस्ट बिकॉज अपने देश में 2003 में ही ये एक्ट आ गया था कि इसको बोलते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट। जैसे कि हमारे पास एक्ट है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हम सांस ले सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, है ना, अभिव्यक्ति की हमारे पास राइट टू फ्रीडम फॉर स्पीच, ये सब हमारे पास है। उसी तरीके से गांव वालों के पास अपना जंगल अपने नाम पे करने का अधिकार है, लेकिन इसके बारे में कोई उनको ज्यादा जानकारी नहीं है। दे आर नॉट दैट मच अवेयर ऑफ इट। They just have to do a simple procedure। उसको एसडीएम यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एसडीएम के पास जाकर सिर्फ अपनी चिट्ठी देनी पड़ती है कि हम सब गांव वाले मिलके इस पूरे जंगल का आधिपत्य अधिकार हमारे लिए चाहते हैं। ये सिर्फ देंगे तो विद इन 10 डेज उनको वो अधिकार मिल जाएगा। लेकिन ये अवेयरनेस उन तक है ही नहीं, और ना ही अवेयरनेस पहुंचाई जाती है। इसका गलत फायदा गवर्नमेंट भी उठाती है और प्राइवेट के लोग भी उठाते हैं। सबसे बड़ा खरीदार अगर कोई है किसी भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का या किसी भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस का पूरे इंडिया में, तो वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट लकड़ियां भी खरीदता है, ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जिसकी लकड़ियां काम आती हैं। लेकिन हम ऐसे पेड़ क्यों लगाएं ताकि उसको बाद में काटा जाए आफ्टर 5 to 10 years? क्यों ना हम ऐसे पेड़ लगाएं जो जिंदगी भर वहीं रहे और उसके फल से रेगुलर वहां के लोगों को फायदा हो। तो ये हम खुद से तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट के पास है जमीन। इसलिए वी हैव टू मेक श्योर कि सबसे पहले वो पूरी जमीन गांव वालों के पास आ जाए। तो सबसे पहले जो मैंने काम चालू किया वो यही किया। सो मैं आई ट्रेवल्ड फॉर अ ईयर फॉर दिस, यहाँ से जाने के बाद, और पूरे समय मैंने कम से कम 18 से ज्यादा गांव को हम लोगों ने फॉरेस्ट राइट दिलवाए हैं। और वहां पर इलीगल जितना भी काम होता है हमने उसको पूरा बंद करवा दिया। पूरी माइक्रो प्लानिंग हमने खुद ने की, मैंने खुद ने तैयार की, सारे डीपीआर्स तैयार करे, वहां पे नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज गांव वालों के लिए इकट्ठा करी, ऐसे नए प्लांटेशन किए जिसकी वजह से गांव में कोई भी लकड़ी भी उठा के लेके नहीं जा सकता। आज वहां पे गवर्नमेंट का ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर भी अगर जाता है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर इज द आईएफएस पोस्ट ऑफ इंडिया, एकदम जस्ट नीचे इन आईएएस, वो भी अगर वहां पे जाके बोलेगा कि मुझको वो लकड़ी दे दो, तो वो नहीं लेके जा सकता विदाउट आवर परमिशन। तो ये पूरा गांव वालों के लिए एक ग्राम सभा क्रिएट होती है, और वो गांव को पूरी वो जगह मिल जाती है। क्या उगाया हमने, क्या उगाया होगा? अश्वगंधा उगाया, गिलोय उगाया, एलोवेरा उगाया, काली मिर्च उगाई, मेथी उगाई, ऐसी चीजें जिससे वहां का बायोडाइवर्सिटी भी खराब ना हो,
और वहां से रेगुलर लोगों को फायदा हो। हम च्यवनप्राश खाते हैं, एक च्यवनप्राश के अंदर 22 से ज्यादा जड़ी बूटियां डलती हैं, और वो हिमाचल से लेकर आते हैं या उत्तराखंड से लेकर आते हैं, लेकिन वही सेम जड़ी बूटी और वो छत्तीसगढ़ में भी होती है। यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन एकदम अच्छा है उसके लिए, लेकिन हम वो जड़ी बूटियां उगाना ही छोड़ दिए। तो हमने वो सारी 22 जड़ी बूटियां हमने यहाँ पे उगाना चालू करवाई। तो एक गांव में ऑन एन एवरेज 21 हेक्टेयर ऑन एन एवरेज हर एक गांव को मिला है। 21 हेक्टेयर इज वे बिग। अब सोचो 18 गांव हमने दिलवाए। तो अब हम एक एक करके हर एक गांव को डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो पूरा उनका लाइवलीहुड है। उनको अगर अपने गांव में एक सड़क भी बनवानी रहती है तो गांव क्या करता है, वो गुहार लगाने बैठ जाता है गवर्नमेंट के सामने। क्यों? वो गांव खुद स्वावलंबन, क्या बोलते हैं उसको, वो खुद स्वावलंबी हो सकता है। कैसे? अगर वो खुद बिजनेस करे। अगर एक गांव खुद एक इंडस्ट्री बन जाएगा तो अपने आप वो अपना डेवलपमेंट खुद ही कर लेगा। दिस इज माय ओन पर्सपेक्टिव। तो वो हमने इंडस्ट्री, इसको कहते हैं विलेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विलेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट। इफ वी हैव टू डेवलप इंडियन नेशन, वी हैव टू डेवलप आवर विलेजेस। आज भी ये मैं भाषण दे रहा हूं पिछले कई सालों से, आज तक यही है कि 75% देश की आबादी गांव में रहती है, और वो सच है। मैंने देखा है अपनी आंखों से। ओरिजिनल जो लोग हैं जिनकी वजह से हम आज खा रहे हैं यहाँ पर, हाँ, वो वहां रहते हैं और वो उगा के यहाँ डालते हैं। बट दे डोंट नो हाउ टू डेवलप देमसेल्फ इन अ वे जिससे उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। हम कुछ विलेजेस के आइडियाज और कुछ स्टोरीज हमको देखने पढ़ने सुनने को मिलती है। देयर आर सम विलेजेस जो कि बहुत डेवलप हो गए बिकॉज सम आइडिया, किसी एक का आइडिया होगा, किसी पढ़े लिखे इंसान का, जो बहुत ही प्योर और सेल्फलेस होगा, उसकी वजह से शायद वो डेवलप हुआ। जैसे कि आनंद। So this is also comes from Navrashna in me. हमारी सबसे पहली विजिट कहीं हुई थी तो वो आनंद हुई थी, एंड आई वॉज फ्लैटर्ड। मैंने ऐसा काम नहीं देखा। मेरी आंखें खुल गई, मेरा कान ऊपर नीचे हो गए। आई वॉज, नींद नहीं आई थी मुझे 3 दिन तक वापस आने के बाद, कि कोई एक व्यक्ति ये इनिशिएटिव ले कैसे सकता है कि पूरे डेयरी इंडस्ट्री को, पूरे डेयरी सिंडिकेट को इतना ज्यादा इक्विप कर दे कि पूरा देश आज अमूल दूध पीता है इंडिया। ये सही है, अमूल दूध पीता है इंडिया। एंड आई हैड सीन दी, वहां पे जो मैंने काम देखा वो, और कितना एडवांस और कितना मैनेजरियल काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, कि देयर आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ ईच विलेज, जो फेडरेशन के पास जाता है दूध, वहां से वो दूध जाता है कंपनी को, कंपनी से यूनिट को, यूनिट से वो पैक्ड होता है, नया उसका वैल्यू एडिशन होता है, वहां से वो जाता है उनके खुद के आउटलेट्स में, देन वो जाता है कस्टमर के पास। कस्टमर जो पैसा देता है वो पैसा आउटलेट में जाता है, आउटलेट से कंपनी में, कंपनी से वापस फेडरेशन के पास, फेडरेशन से सोसाइटी के पास। एंड नॉट ओनली रॉ मटेरियल का पैसा, बट वो जो एंड प्रोडक्ट जो बाहर जा रहा है उसका भी कुछ प्रॉफिट शेयर वो फार्मर्स को देते हैं। आई गॉट, एंड दिस इज वंडरफुल। ये इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है? आप सोच सकते हो इतना बड़ा इंप्लीमेंटेशन? एक बार जरूर, आप लोग गुजरात में पढ़ रहे हैं, आप लोग यहीं के हैं, जस्ट एक बार आनंद का विजिट जरूर करें, आपको समझ में आएगा कि वो कैसा मैनेज करते हैं। वहां पे एनडीडीबी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। आई एम दी, इसमें प्रोफाइल में लिखना रहेगा, आई एम दी कमिटी मेंबर ऑफ एनडीडीबी ऑल्सो, एक छोटे से यूनिट के लिए। तो वो जिस तरीके से वो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड काम कर रहा है वो जबरदस्त है। वहीं से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना, वो तो डेयरी इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं ना, क्यों ना ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर हमको छत्तीसगढ़ में हमारे एमएफपी के लिए भी तो बनाना चाहिए। सो नाउ इन छत्तीसगढ़ सोशल ट्रेन इज वर्किंग ऑन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा, कि वो जो गांव में बनती, गांव में जो चीजें टैमरिंड है, महुआ वहां पर हमारे यहाँ पे होता है। महुआ इज नॉट ओनली फॉर दारू, ओके, महुआ से हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी दारू बनती है, मस्त गांव में, और घर घर में इंडस्ट्री है दारू की हमारे पास, तो है ना, बहुत एकदम तैयार है वो लोग, फर्मेंटेशन करके बहुत अच्छी दारू बनाते हैं। लेकिन उसके अलावा महुआ के बहुत सारे मेडिसिनल फायदे हैं, जो कि आयुर्वेदिक इंडस्ट्री को जाता है, जो कि फार्मास्यूटिकल्स को जाता है।
So I have, social trading has connected. Now we are the connecting chamber for the villagers and for the companies. हमने बीच के middleman को पूरा हटा दिया. And for that we have to pay some price. अगर आपको टैमरिन खरीदना है तो आप अगर आप कंपनीज के पास जाएंगे तो 1 किलो लेके तो नहीं जाएंगे ना, हमको वहां पे टनों में सामान लेके जाना पड़ता है. गांव वालों को मैं बोलूंगा कि अगर आपको मेरे को माल देना और उधारी में देना है तो वो नहीं देंगे. दिस इज ऑल्सो फैक्ट. This is something which is very challenging for me and for my team also, for my younger brother also, कि how we will manage this. Then we have to invest something. उनको भरोसा दिलाने के लिए we have to invest a lot of money from my different savings and my जो मेरी शुरुआत की इन्वेस्टमेंट थी वो यहीं से हुई. तो एक एक ट्रक जो है वो हमको पहले तैयार करनी पड़ती है और फिर वो ट्रक हम कंपनीज के पास लेके जाते हैं और वहां अभी हमारा सप्लाई चेन चालू हो गया है फॉर ट्रेडिंग. तो ट्रेडिंग से शुरुआत हुई और फिर धीरे करके ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज होने लगा हमारे एरियाज में. 18 मेरे पास गांव है, 18 से 19 गांव है, वहां पे पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज होने लगा. फिर एक आइडिया और आया कि वाई क्यों ना हम दोनों भाई बैठ के बात करते थे, क्यों ना यार हम ऐसा कुछ करें कि हमारे यहाँ से ही प्रोडक्ट बने. हम टैमरिन बाहर देते हैं, टैमरिन बाहर लेके जाता है कोई, वो प्रोडक्ट बनाता है और वही प्रोडक्ट घूम फिर के हमारे स्टोर्स में आते हैं और हम वहां से खरीदते हैं. तो क्यों ना वी कैन स्टार्ट आवर ओन इनिशिएटिव, छोटा सा कुछ तो करें. कैसे करेंगे? तो फिर से अगेन देन वी हैव टू इन्वेस्ट समथिंग, our money, our time, our idea, but that idea has a spark in me and I got initiated. नहीं मुझको तो करना चाहिए. So फिर एक आइडिया निकला कि नहीं we can do something. हम छोटे मोटे कन्फेक्शनरीज तैयार करते हैं, लाइक टैमरिन चॉकलेट्स, टैमरिन चटनी, टैमरिन ब्रिक्स, ये सब कुछ चीजें वहां पर तैयार की जा सकती हैं. और जो हमारी एनजीओ पहले से वहां पे मेरी मदर जो है वो कर ही रही थी, बट इट वाज इन वेरी स्मॉल स्केल. तो क्यों ना इसको थोड़ा सा छोटे से स्तर से थोड़ा बड़े में लेकर जाते, कुछ कोशिश करते हैं इसमें. सो आई हैव टू शेयर वन वीडियो ऑफ दैट कि हमने जब शुरुआत की थी तो कैसे की थी. Siddharth, I think we can't see the video. We can see your desktop. I mean the train thing. Oh, I think we've lost Siddharth, or I'm lost. Lost it? We could not see this video. We were able to see see your folder at this point of time. Okay. Just a minute. I'll do it again. Huh, ma'am? 1 minute. I'm really I see sorry. that your mom is also joined, I guess. My God. Performance pressure. This is stressful, ma'am, for me. But No, okay. no, don't be stressed. She's a sweet I one. always get. Inspire somebody. I mean, I know how aspirational she is. I mean, for me also, I'm a big fan of hers. I've heard so much about her, and I मैम वी can't. ऑल बिग फैन ऑफ हर. अभी कल उनका भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, मतलब उनका भी एक वो चल रहा था. जस्ट ओके. सो या नाउ यू सी वीडियो दिख रहा है अभी? हाँ जी, अब दिख रहा है. हाँ जी. But the voice is not there now. Earlier I could see the... No. You might have to just put that include video voice in there. आपने वीडियो तो देखा ना उसका? वीडियो दिख रहा था. ऊपर एक ऑप्शन आना चाहिए इंक्लूड द कंप्यूटर साउंड्स व्हेन यू आर शेयरिंग. ओके. व्हेन यू इंक्लूड कंप्यूटर साउंड, शेयर कंटेंट के बाजू में. शेयर कंटेंट के बाजू में there should be include computer sound something. I don't know how it looks in your place. I mean, I think वहां से आना चाहिए. show background entire show meeting detail device settings.
नो मैम है नहीं, बट इट्स ओके। वो सिर्फ छोटा सा वीडियो, आप सब अगर वीडियो भी देखेंगे तो चलेगा। When you're sharing it ना ऊपर स्क्रीन, आई डोंट नो उसके उसमें तुम्हारे ऑप्शंस में ऊपर ही आना चाहिए। प्रेजेंटिंग है, गिव कंट्रोल का आ रहा है, और दूसरा एक स्टॉप प्रेजेंटिंग जस्ट। ओह नो, ओके यू स्टार्ट, लेट्स सी। पहले तो आया था आवाज अपने आप ही। आपको मेरी आवाज तो आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज। समथिंग ये मैं जैसे हमें गांव में गए, ये गांव में थोड़ा बहुत काम किया, किसी छोटी मोटी चॉकलेट्स बनवाई शुरुआत में, अब टेस्ट थोड़ा रफ था, समझ में नहीं आया कि दुकान में लिखेगा कि नहीं लिखेगा। We had taken a lot of meetings, जा We started from there, मतलब जितना हमने जो शुरुआत में मैंने और मेरे यंगर ब्रदर ने शुरुआत की, तो we started from this कि क्यों ना गांव में जाकर वहां पे लोगों को मोटिवेट करें एंड उनको हम जोड़ें हमारे साथ जितना हो सके उतना, और उनसे हम कुछ चीजें तैयार करवाएं ताकि उनको उनका रेगुलर सस्टेनेबल लाइवलीहुड हो। एंड इट्स अ लॉन्ग थिंग, हमको फिर से उसमें बहुत ज्यादा हमको बगल अप करना पड़ा, हम कैसे करेंगे, बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस, इट इज जेब में मनी भाई तो है नहीं, बिकॉज वी हैव टू डू समथिंग कि इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे उसमें। सो फॉर दैट देयर इज अगेन अ कोट ऑफ स्वामी विवेकानंद जो हमेशा मेरे डेस्क में रहता है। I really want to, अगर सब लोग सुन रहे हैं तो, because this is an idea, this is very very interesting and very risky idea जो हमारे मन में आया, जो लोगों के मन में आता नहीं है, वो हमारे मन में आया, तो लेकिन अब उसको जिंदगी भर और उसको जीना भी तो पड़ेगा ना, नहीं जिएंगे तो वो आइडिया इंप्लीमेंट कैसे होगा। तो फॉर दैट देयर इज अ कोट लाइक कि एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो। आई रियली वांट कि आप सब एक एक बार इसको जरूर सुने कि एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार से ओतप्रोत और डुबा लो, और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफलता की सही सीढ़ी है। ये इंग्लिश में भी था, बट आई रियली वांट कि मैं हिंदी में ये आप लोगों को सुनाऊं। सो दिस इज द इंस्पिरेशन कि क्यों ना इस आइडिया को, जो कि वेरी रिस्की है, बट अंदर से एक वाइब आ रही कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा जाएगा, और अगर ये इंप्लीमेंट हो गया अच्छे से तो सही डेवलपमेंट हमको गांव में देखने को मिलेगा, एक सही विलेज इंडस्ट्री बनेगी। एंड वी टेक अप दिस आइडिया, हमने उसके बारे में सोचा, आइडियाज निकाले, लोगों से बातचीत की, बहुत लोगों से मिले, इन्वेस्टर्स से बातचीत की, लोगों से बातचीत की। माय फादर मदर वाज वेरी सपोर्टिव ऑन दिस कि कैसे आप काम करेंगे। एक तो ये एक तो इस तरीके से सोचना कि आपके मतलब मेरा बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव में घुसने वाला है, ये तो अपने आप में बहुत 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 मुश्किल होता है। बट आई एम वेरी वेरी प्रिविलेज्ड कि आई ने और बाबा ने हमेशा मेरा साथ दिया कि दे आर ऑलवेज उनकी एक लाइन मेरे पास हमेशा मेरे कानों में गूंजती कि तुम ऐसा मत सोचना कि अकेला है, तेरे पीछे हम 3 और हैं। So that basically instigates me a lot कि अरे वाह, जब इतना बड़ा मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है then I can do that। एंड दुनिया में आपको कोई भी सपोर्ट कर ले, आपके फादर मदर और आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही है ना, तभी there is success, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। So that really instigates me a lot। तो मैं उनको उस विचारों को लेके चलता गया एंड now here comes the destiny। बिकॉज आई फील जितना हो सके आप वर्क हार्ड, जितना हो सके आप मेहनत कर लें, वो मेहनत प्योर सेल्फलेस तरीके से होनी चाहिए, तभी किस्मत साथ देती है। एंड आई गॉट अ गुड डेस्टिनी ऑफ माइन, our very old NGO got selected in the MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम, स्फूर्ति स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो विलेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए ही बनी है, और उसमें वी आर ए टेक्निकल एजेंसी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आई एम द नोडल ऑफिसर फॉर दैट। So we have to implement
डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन रूरल सेक्टर्स, जिससे वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। तो ओनली एजेंडा ऑफ दैट स्कीम इज कि वहां पर गांव में एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिलनी चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ, उनको टेक्निकल सपोर्ट मिलना चाहिए हम जैसे एजेंसीज का, जो सही में उस वहां के प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में लेकर आए और लोगों तक पहुंचाएं। देयर शुड बी अ बिग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड बिग प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी फॉर दैट। तो वो इम्प्लीमेंटेशन हमको करने का मौका मिला एंड दिस वाज माय ब्रेक थ्रू। यहाँ से हमको बहुत आइडियाज आए और हमको फंड्स, सबसे बड़ी बात है फंड्स, गवर्नमेंट इज देयर फॉर फंडिंग। Now we can implement around 2.5 crores to 5 crores of industry anywhere in India. We are eligible for that. Wow. We just have to make sure certain agencies and certain things, certain DPRs, certain agendas of the government जो आपको propagandas guidelines हैं, वो अगर हमने follow कर ली तो हम आराम से बहुत अच्छी एक खुद की विलेज इंडस्ट्रीज हर जगह चालू कर सकते हैं। और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने भी दे आर वेरी हेल्पफुल। स्टेट गवर्नमेंट ने हमको बहुत साथ दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने भी हमारे कुछ इनिशिएटिव पे, एक बहुत बड़े इनिशिएटिव पे उसने इन्वेस्ट किया। और दैट इज इन माय प्रोफाइल दैट उड़ान महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड इज द फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। जिस तरीके से कंपनीज बनती है, जैसे हमारी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड जिसमें डायरेक्टर्स हैं 2, उसी तरीके से फार्मर्स की भी एक कंपनी बनती है जिसको FPOs बोलते हैं। और आई रियली वांट कि आप लोग सब इसके बारे में अभी से जान लें, जितने भी जूनियर्स एंड सीनियर्स हैं MSW के। FPOs ये बहुत रिवॉल्यूशनरी तरीका है किसी भी अच्छे सोशल डेवलपमेंट का। बहुत कलेक्टिव तरीके से पूरा गांव जुट जाता है, कई गांव जुट जाते हैं एक FPO बनाने में। और जब सब एक ही बेस में आ जाते हैं तो दे विल बी अ लॉट ऑफ सोशल डेवलपमेंट्स। सब लोग एक साथ मिलकर काम, क्यों बोलते हैं ना कि वो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और वो एक साथ अगर बहुत सारी लकड़ियां जुड़ जाए तो टूटने में तकलीफ होती है। तो ये उसी तरीके की बात है। तो हमने FPO वहां पे क्रिएट की और गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ ने उसमें हमारा साथ दिया, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक कोंडागांव करके छत्तीसगढ़ में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, डेंस नक्सलाइट एरिया एंड डेंस ट्राइबल एरिया है, जहां पर इस तरीके का इनिशिएटिव छत्तीसगढ़, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद, दीज आर द इंडस्ट्रियल हब। छत्तीसगढ़ ने ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं देखी है। छत्तीसगढ़ ने इस तरह का कोई भी कुछ भी नहीं। वहां पे तो हमने जो इंडस्ट्री चालू की है वहां पे तो लोग देखने आते हैं कि क्या है ये ऐसी फैक्ट्री। मतलब मुझको गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लोग आके कहते हैं कि अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। तो हमारे बच्चे यहीं से बड़े हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि इंडस्ट्री नाम की भी कोई चीज होती है जहाँ पे सब मिलकर काम करते हैं, जैसे प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट गाँव से बाहर निकलता है, बिकता है, लोग उसको खरीदते हैं। दिस इज समथिंग वेरी 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 क्या बोलते हैं, डेस्टिनी हमारी जो है वो बहुत स्ट्रांग थी उस समय। So I want to share that video too, अगर मैं उसको दिखा पाऊँ तो। Just a minute. I don't know इसमें फिर से साउंड आएगा कि नहीं आएगा, बट आ रही है, आवाज आ रही है? Yes. This is our industry now, plant. अगरबत्तियां बना रही है महिलाएं हाथ से।
ओके, देखा आपने पूरा वीडियो ना? हाँ। देखा? आई एम रियली सॉरी, ये पुराना वीडियो है, हमारे पास नया वीडियो मेरा एडिट होके अभी तक मिला नहीं है। आई विल डेफिनेटली शेयर दैट अगेन। ये हमने जब शुरुआत में हम काम करें तब का वीडियो है। बट द थिंग इज नाउ वी आर डीलिंग विद मोर देन 30 to 40 प्रोडक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर प्लांट इन कोंडागांव, जहां पर हम 300 महिलाओं को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा दे रहे हैं। वी हैव बेनिफिटेड मोर देन 300 हाउसहोल्ड्स आल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके रॉ मटेरियल्स यही गांव से आते हैं, वैल्यू एडिशन यहीं पर होता है। सोचो ना कि पुष्पा में जिस तरीके से आपने गांव में महिलाएं देखी हैं, वैसे ही महिलाएं हैं हमारे यहाँ पर, और वो कुकीज बनाती हैं, और उनके हाथ की कुकीज बहुत टेस्टी होती है, हम नहीं बना सकते हैं। Where do you get So they have them? a good grasping How power. did you order them? They were हाँ। looking very yummy. But that's what I'm saying, मैम। लास्ट में आते थे आप लोग को पूरा मार्केटिंग करके जाऊंगा मैं यहाँ पर। 13 और जितने लोग हैं यहाँ पर, ये आई थिंक 20-30 लोग होंगे, ये लोग तो आप लोग तो खरीदेंगे मेरा माल पक्का। The thing is कि वो इतना टेस्ट, they have a very good grasping power and they are very very keen to know कि ये काम कैसा होता है, ये क्यों इनोवेटिव है, ये क्यों इतना अच्छा है, और इससे उनको फायदा। and what they are earning? They are earning just ₹200 per day, 6,000 rupees per month salary, and they are very 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 motivated. I can say this full-heartedly. They are only getting 6,000 rupees per month, but they are very happy, क्योंकि वो 6,000 रुपए पर मंथ भी उनको नहीं मिलता है आज तक। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। So that our idea really got, एक हमने पौधा लगाया, और वो पौधा धीरे से फल देने को अभी पहुंच गया है। आज वो 6,000 कमा रहे हैं, and they are really thinking कि in a certain span of our life we can earn a good amount of salary, we can earn good amount of pension. और एक और बहुत बड़ी चीज है मैम, after this COVID there are many people who migrated from their villages, और फिर उनको सफर करना पड़ा बहुत ज्यादा। When initially I was taking gram sabhas in initial villages, I really wanted to tell you all, मैं सबको ये बोलता था कि क्यों ना यहाँ पे इंडस्ट्री आप लोग खुद हमारे साथ मिलके बनाओ, ताकि आपके यहाँ के खुद के बीवी बच्चे परिवार के लोग यहाँ से बाहर ना जाएं और परेशान होकर वापस यहाँ पे, देखो आ गए ना अभी तो। अगर उनको यही काम मिलता जाएगा तो बाहर नहीं जाएंगे, और जैसे ही माइग्रेशन होता है वैसे ही कल्चरल वैल्यूज खत्म हो जाती है। और अगर गांव के लोग शहर चले जाएंगे तो गांव में कौन रहेगा? और जो मैंने कहा ना कि गांव वो सही में इंडिया के सोल, जो आत्मा है वो गांव है। ये महात्मा गांधी ने सही कहा था। तो ये जो पर्सपेक्टिव था हमारा, वो धीरे धीरे करके एक नया मोड़ अभी ले रहा है। वी आर ऑल्सो, इसमें एक प्रोडक्ट नहीं आया जो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, दैट इज मिल्क शेक। हम वहां पे मिल्क शेक बना रहे हैं। हमारे पास सेम स्टेरिलाइजेशन मशीन, पेस्चराइजर मशीन, कूलिंग प्लांट उतने ही लेवल का है जो अमूल के पास है, जो मैंने देखा था वही सेम चीज हमने यहाँ पर पुटअप करवाई है अभी। और हमारा कुछ 300 to 400 लीटर्स पर डे का उसकी कैपेसिटी है, और वो हम लोग मिल्क शेक्स तैयार करवा रहे हैं, गुड फ्लेवर्ड मिल्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक गांव में कंद होता है, कंद यू ऑल दो ना, कंद, एक कंद होता है, वो उसका नाम है तिखुर, उसको बोलते हैं एरोरूट, इंडियन एरोरूट। इट्स अ गुड स्टार्च। मैम आपको पता है हम लोग जब वो सूप वगैरह बनाते हैं तो वी इंक्लूड कॉर्न स्टार्च ऑन दैट। Yes. कॉर्न स्टार्च इज बैड स्टार्च, नॉट गुड फॉर हेल्थ। इंडियन एरोरूट स्टार्च जो है इट्स गुड फॉर हेल्थ, हाई इन पोटेशियम, गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा होता है, नवजात बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड थिकनिंग एजेंट, बहुत ही ठंडा पेय पदार्थ होता है जो छत्तीसगढ़ में कई सालों से है। तो वो यहाँ पर हमने वैल्यू एडिशन करके उसको बनाना चालू किया, और उस कंद से वी क्रिएटेड अ मिल्क शेक, क्योंकि वो टेस्ट में भी अच्छा आता है, थिक मिल्क शेक बनता है। सो वी हैव 7 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ मिल्क शेक, केसर, पिस्ता, बादाम, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वैनिला, पाइनएप्पल, इस तरीके के हम लोग अलग अलग मिल्क शेक साथ में निकाल रहे हैं। There's also one part is मिल्क शेक, जो कि बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, और वो भी वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। So yes, this is something. Apart from this, लास्ट में आई थिंक हम लोग टाइम से आगे जा रहे हैं बहुत, but I just really want to conclude my thing after showing my catalog to you, all of you. तो आपको अच्छा लगेगा शायद। You So can yes, this is follow this thing on Instagram as well. He Ah. puts pretty much, somebody is very active on Instagram with you. I don't know who's handling it. Bala handle करते हो, तुम करते हो? नहीं मैम, there is an agency now.
Now they're big, no? Now you will have an agency. My God, what beautifully. I must say, compliment your agency is doing a good job. Thank you, ma'am. This is Social Train catalog, and this is how we started. Today, most of us are turning towards sustainability and small organic businesses. We love products that are clean, good for our body and mind. Social Train believes that there is no better way to find organic products than through our own country's tribals. We have started a lot. हमने जब चालू किया तब वहाँ पे हमको ये पता नहीं था कि हम कितने ज़्यादा आगे तक बढ़ेंगे, बिकॉज वहाँ का जो ट्राइबल कल्चर है इट इज़ वेरी कंजर्वेटिव, जो लोगों को बहुत जल्दी भाता नहीं है, नए लोगों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. बट उसके बाद भी वी हैव ग्रोन अ लॉट. आवर रेवेन्यू गोज बैक टू द 300 ट्राइबल्स हु हैव ग्रोन विद अस नाउ. तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है. इन अ स्पैन ऑफ ओनली 1 ईयर, एक साल में हम लोगों ने 300 लोगों को फायदा देने की कोशिश चालू कर दी है. दैट इज समथिंग वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग फॉर अस. Then is our journey in the forest of Chhattisgarh. We found a dream, जो मैंने आपको बताया. This is my सिद्धार्थ एंड कृष्णकांत इज माय यंगर ब्रदर. हम दोनों ने मिलके, क्योंकि उसका साथ हमेशा ऐसा होता है वो फोटो खींचने के लिए रहता है, उसकी फोटो नहीं आ पाती. बट आई रियली मेक श्योर कि एक बार हम सब मिलेंगे. तो दिस इज सिद्धार्थ कृष्णकांत, जो मेरे साथ उसने वो चालू किया. एंड व्हेन आई एम टेकिंग दिस सेशन ही इज रेगुलरली कॉलिंग मी. आई नो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वहां पर. This is the CM of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel ji, who inaugurated our this plant उड़ान जो मैंने आप सबको दिखाया, वो उन्होंने inaugurate किया. and we are very blessed कि उनको बहुत अच्छा लगा. बहुत उन्होंने हमको बहुत प्रोत्साहन दिया. and वो बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस को बहुत आगे तक हम लेकर जा पाएं. उसके अलावा सोशल ट्रेन को स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा यंग एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी हमको मिला था बीच में, when we started this program. So yes, सारे प्रोडक्ट्स we have all natural products, organic products, जिसमें कहीं भी हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज नहीं करते हैं. they are all natural preservatives. जितना भी हम आज खाना खाते हैं, there are many big companies, big short companies, कहीं ना कहीं उनके रेसिपीज में आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिससे एडिक्टिवनेस तो रहता ही है, बट आपके हेल्थ में बहुत बड़ा असर, खराब असर पड़ता है. तो वी हैव कल्टिवेटेड दिस थिंग कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ दिनों में गुजरात में भी चालू होने वाला है इन फरवरी मंथ. सो यू ऑल कैन गेट आवर प्रोडक्ट्स नियर बाय. जो भी आपके अच्छे स्मार्ट स्टोर्स होंगे, बड़े स्टोर्स होंगे, विल डेफिनेटली मेक श्योर कि बड़ौदा, अहमदाबाद, 2 जगहों पर हमारे प्रोडक्ट्स रेगुलरली लोगों को मिलते रहे. सो दिस इज टैंगी इमली चटनी एंड टैमरिन कंसंट्रेट. ये 2 हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो टैमरिन से बनते हैं. इसके अलावा वी आल्सो हैव टैमरिन चॉकलेट्स एंड टैमरिन पाउडर. वी हैव पिकल्स. छत्तीसगढ़ का हार्ट है, वहाँ पे लोग बहुत अच्छी चटनीज और पिकल्स तैयार करते हैं. सो नॉट ओनली मैंगो एंड मिक्स पिकल, वी हैव टैमरिन पिकल, जैकफ्रूट पिकल, कटहल जिसको बोलते हैं, लेमन, गार्लिक, ग्रीन चिली, देन जिंजर पिकल. इसके अलावा देयर इज अ लिस्ट ऑफ मोर देन 18 पिकल्स नाउ वी आर वर्किंग विद, अलग अलग प्रकार के. 18 पिकल्स का पूरा रेंज है. इसमें टोमेटो पिकल है, टोमेटो चटनी है. एंड दिस इज तिखुर, व्हाट आई एम सेइंग. दिस इज द मिल्क शेक, चॉकलेट एंड केसर बादाम पिस्ता मिल्क शेक. एंड दिस इज द तिखुर पाउडर, नॉर्मल तिखुर पाउडर जिसको आप घर में यूज कर सकते हैं एज एन स्टार्च. एंड दिस इज तिखुर प्रीमिक्सेस. घर में हम खुद अपने, जैसे हम बॉर्नविटा यूज करते हैं, वी कैन यूज दिस प्रीमिक्स फॉर एज यूज फॉर बॉर्नविटा. बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसमें ज्यादा शुगर नहीं है, बच्चों को बहुत पसंद आता है. दिस इज स्टोरी फॉर अस. हमने एक छोटा सा स्टॉल लगाया था छत्तीसगढ़ में, रायपुर में. जैसे रिटायर्ड IAS ऑफिसर, वो गलती से एक ले गए, वहां से लेके गए, तो घर में गए और नेक्स्ट डे वापस आए वो, और बोला कितने डब्बे हैं आपके पास. हमने कहा कि सर 10 ही डब्बे हैं. तो स्टॉल प्रोकिश सब डब्बे मुझको दे दीजिए. तो मैं, जो वहाँ लेडी वहाँ काम कर रही थी स्टॉल पे, वो परेशान हो गई, भाई कोई फूड इंस्पेक्टर तो नहीं है. ये ऐसा क्यों लेके जा रहा है एकदम. तो बैन वैन तो ही गॉट वेरी टेंस. उसने मुझे फोन किया, कहा कि सर ये कोई है जो ये लेके जाना चाहते हैं. मैंने बात कराओ. मैंने बात किया एंड आई गॉट वेरी गूज़बम्स एट दैट टाइम. द फर्स्ट एवर किसी का अगर रिस्पॉन्स आता है तो कैसा लगता है फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड. आप खुद को अपना चीजें अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर. लेकिन जब कोई बाहर का व्यक्ति आपको कहता है, एंड दैट मैन हैज टोल्ड मी कि आई लाइक दिस प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज मेरा बच्चा दूध नहीं पीता है फ्रॉम मेनी इयर्स. Just because of this product, वो रोज 2 टाइम दूध पी रहा है पिछले 2 दिन से, and I was very flattered. इसलिए मुझे पूरा चाहिए. So at that time we got that
गूज़बम्प्स फॉर अ व्हाइल शुरुआत में कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं शायद वो लोगों को पसंद आने वाला है। जिस कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट पूरे कोल्ड डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 1 लाख से ज्यादा नारियल के पेड़ हैं और उस नारियल के पेड़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां का जो नारियल होता है उसको हम यूज करके कोकोनट ऑयल वी आर मेकिंग कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। देन देयर इज मसाले हमारे यहाँ खुद ग्राइंड होते हैं। रेड चिली का कर्क्यूमिन लेवल होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक प्रेजेंटेशन चला गया क्या? नहीं है ना? तो हर एक टर्मरिक का कर्क्यूमिन लेवल होता है। तो मिनिमम नॉर्मल कर्क्यूमिन लेवल जो हम आज खा रहे हैं ऑफ टाटा और एमडीएच के जो मसाले आते हैं उसमें जो टर्मरिक होता है इज 3 to 4%, बट हमारा जो कर्क्यूमिन है 8% कर्क्यूमिन लेवल, जो सबसे अच्छा है अभी नॉर्मल ऐसे मध्य भारत में ऐसे स्टेज में। नहीं तो सिर्फ आपको ऐसा कर्क्यूमिन लेवल, इससे अच्छा कर्क्यूमिन लेवल मिलेगा इन मेघालय और उसके की जो हल्दी होती है वहां की। बट हमारा जो टर्मरिक है उसका भी 8% तक कर्क्यूमिन लेवल जाता है, विच इज गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर हेल्थ। So and again we have cookies, coconut ragi cookies, normal ragi millet cookies, rice cookies, dry fruit cookies. There's also a big range of cookies too. So yes, you can follow us on the Instagram. The social train इस नाम से हमारा Instagram में account है। और apart from this, I really wanted to share this कि आप सब कोंडानार KONDANAAR, this is our brand, जो हम brand के जैसा इसको प्रमोट कर रहे हैं with the help of government, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट है। इसलिए हमको दोनों को, we are basically the technical support agency and the production marketing team for the कोंडानार brand, और वो हमारा ही सारे प्रोडक्ट हैं। हमने ही उसको डिजाइन किया है, बट वी हैव टू वर्क विद गवर्नमेंट। तो इसलिए मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन ये पूरा हमारे पास रहता है उसका। तो कोंडानार इज द ब्रांड, मेन ब्रांड जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। आई रियली वांट कि आप सब उसको फॉलो करें। इस वीक में हमारी वेबसाइट भी लाइव हो जाएगी, named as kondanar.com, जिसमें आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वी आर लाइव इन इंस्टाग्राम, वी आर लाइव इन अमेजन, फ्लिपकार्ट, है ना, मीशो, ग्रोफर्स, बिग बास्केट, इन सब जगह पर हम लोग अभी लाइव आ चुके हैं। I was about to ask you, how did you exploit those things? Achha, Siddharth, I want to know this entire story behind why social train. That always kept me going. क्यों train? क्यों कुछ और नहीं? क्यों ये नाम? Because it's very interesting. Yeah. Thank you, man. So this social train is also very connected. ये बहुत ये चालू ऐसा हुआ था, there's नाम आया था the local social train. This is the whole name हमने सोचा था पहले, और उसके बाद फिर वोकल फॉर लोकल उसके बाद आया। तो इट वाज वेरी कनेक्टेड। तो सपोर्ट तो मिलता, बट उसके बाद भी सोशल ट्रेन इज समथिंग, मैम, मी एंड माय ब्रदर बोथ लव टू ट्रेवल, एंड ट्रेन ट्रेवलिंग इज द हार्ट वार्मिंग थिंग फॉर अस। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हमने जब चालू किया तो हम एक गांव में थे, छत्तीसगढ़ का जब ट्राइबल एरिया का शुरुआत हुई, कांकेर, हम उस गांव में थे। हमने वहां थोड़ा काम किया, हमको आगे से बुलावा आया, हम कोंडागांव तरफ चले गए, हमने वहां थोड़ा काम किया। देन वी अगेन मूव टू बीजापुर, हमने वहां काम किया, अगेन मूव टू नारायणपुर, हमने वहां थोड़ा काम किया, वहां से भी मूव टू जशपुर। सो वी हैव कनेक्टेड दिस ऑल थिंग। और इन पूरी जगहों पर ट्रेन नहीं चलती है। बट ये जो डब्बे से डब्बे on, and now this all segment are connected with one engine named as the social train. तो ये जो डब्बे पूरे हमारे जुड़े हैं, and I really wanted कि ये social train थोड़ा छत्तीसगढ़ से बाहर निकले। So for that also we are planning. Now we are in the near future till March, I think we are planning a good peanut butter plant in Rajkot, Gujarat, and we are also working with in Jammu and Kashmir। अभी हम वहां से केसर और कुछ चीजें ट्रेडिंग में करते हैं। और इन दी मंथ ऑफ फरवरी ओनली सोशल ट्रेन के 30 और इंडिविजुअल प्रोडक्ट आने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें केसर है, फ्लोर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अच्छे आपको राइसेस मिलेंगे, बीन्स मिलेंगे, ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, गुड अमाउंट ऑफ फ्लोर्स लाइक मल्टी मिलेट फ्लोर्स, देयर आर क्यूनोवा फ्लोर। उसके बाद फिर जो आप लोग घरों में रोज यूज करते हैं
बट जितना हो सके उतना हम अगर ऑर्गेनिक और नेचुरल यूज करेंगे तो ही हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, नहीं तो हेल्थ विल बी गॉन कभी भी। अभी इसके बाद तो वी आर वेरी, हमको हमारे खुद के हेल्थ के लिए काम करना चाहिए। तो दिस इज समथिंग which is very instigating for us कि हमको क्यों ना इसको प्रमोट करें। This is all our story and we are working for that. At last there's small story I always tell, मतलब something जब भी I give something lecture kind of thing, I really wanted कि last में एक छोटा सा एक story आप लोग को बताई जाए, which is something I can tell. I think 2 मिनट और रुक सकते हैं अपन। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। So कहीं स्टूडेंट्स बोर तो नहीं हो गए हमारे साथ? पता नहीं स्टूडेंट्स का, पता नहीं, मैं तो बहुत थ्रू आउट बहुत ज्यादा ऑ में हूँ कि माय गॉड सिद्धार्थ, हमको सीधे मेरा एंड यू नो 17-19 इज माय फर्स्ट बैच ऑफ टीचिंग एकेडमिक्स में 17-19, so I am always, I have a special attachment with the entire batch। भले 10 बच्चे थे तो वो 10 बच्चों के साथ मेरी दिल्ली ट्रिप, मेरा ये मेरा वो सब कुछ फर्स्ट तुम्हारे साथ ही हुआ है। तो मेरे को इस बैच के लिए आई मीन आई कैन से ओपनली ऑन फ्लोर एवरीवन में पीपल में फील जेलस, बट 17-19 इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सो मैडम कुछ, मैडम हमारा भी बता दो। हाँ 16 आई नो 16-18 मुझे लेके आया, तो 17-19 मेरा फर्स्ट बैच था जिसको मैंने पढ़ाया। तो मेरे को हमेशा वो 17-19 बैच बहुत स्पेशल रहेगा। यू नो दिस, जब भी आप कोई फर्स्ट थिंग अपने करते हो ना, फर्स्ट ऑफ एनी काइंड, वो हमेशा स्पेशल रहता है। पहला बच्चा, पहली पढ़ाई, पहला जॉब। सो ये मेरा पहला बैच था जिससे मैंने अपना एकेडमिक करियर शुरू किया है। सो ये बैच मिले मैडम आपको, आप परेशान तो हुए होंगे हम लोग से भी। I'll conclude this now। उसके बाद फिर अगर लास्ट में प्लीज आई रियली वांट, अगर आप लोग को समय है तो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझसे पूछेंगे तो। सो द स्मॉल स्टोरी इज, एक जंगल है, बहुत ही घना जंगल है। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। और वहां पर अचानक से आग लग जाती है। आग तो क्लाइमेटिकल कंडीशन है, कहीं से भी लग सकती है। तो आग लग गई, जबरदस्त आग लग गई, सब लोग परेशान हो गए। देयर आर मेनी, सारे के सारे जंगल के लोग जो हैं, जितने भी जंगल के जानवर हैं, सब शहर की तरफ बाहर भागने लगे। अगर आपके घर में आग लगी तो क्या करेंगे आप? बाहर ही तो भागेंगे ना, तो आग में तो मर थोड़ी जाएंगे। सो दे ऑल रन अवे। तो बंदर दौड़ रहा है, लॉयन दौड़ रहा है, टाइगर दौड़ रहा है, हिरन दौड़ रही है, चींटियां दौड़ रही है, हाथी बाहर निकल रहा है, सब बाहर भाग रहा है। एक स्मॉल छोटी सी चिड़िया है, उसको पता नहीं क्या आइडिया आया, पता नहीं उसको कहाँ दिमाग घुमा, वो बाजू के झील से अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लेकर आती है और वो ऊपर से उस आग में डालती है। एंड शी इज डूइंग रिपीटेडली, आई डोंट नो उसने कितने बार किया होगा। वापस जाती है, चोंच में पानी भर के लेकर आती है और यहाँ पे डालती है, फिर वापस जाती है, चोंच में पानी भर के लेकर आती है और एक बूंद डालती है। इसको एक कौवा देखता है और कौवा जोर से चिल्लाता है, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस कृत्य से, इस छोटे से कर्म से क्या पूरी आग बुझ जाएगी? यू नो दिस इज समथिंग जो उसने आंसर दिया, जो मुझे हमेशा बहुत बहुत हार्टफेल्ट रहता है। उसने आंसर ये दिया चिड़िया ने कि मुझे पता है कौवा भैया कि मेरे इस छोटे से काम से यहाँ की आग नहीं बुझेगी, लेकिन मेरा जब इस पूरे जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वाले में। टिल नाउ इट गिव्स मी गूज़बम्प्स। क्यों ना हम थोड़ा अलग हटके कुछ ऐसा सोचें जिसमें वी गॉट टू नो समथिंग जो कि सबसे थोड़ा हटके है और एक पॉजिटिविटी सबके लिए लेकर आता है। So at the last, I am really thankful to my mentors who are sitting here. अर्चना मैम, I know मैंने आपको बहुत बॉदर किया है पूरे MSW में, और MSW के बाद भी टिल मैंने I think सिद्धार्थ भी बहुत ही बहुत अच्छा थॉट मुझे आप लोगों से यानी आ गया आई थिंक। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों से गाइडेंस मिला है। प्रिया मैम इज़ नॉट हियर, बट उनकी वजह से भी आई वाज वेरी मच अप्रिशिएटेड ऑलवेज। प्रियंका मैम, तन्वी मैम जो शुरुआत में थी, उनका ही वो लाइन थी, मुझे याद है, हेल्प वाली, मुझे ओरिएंटेशन की लाइन है वो। एट दैट टाइम वहाँ से मेरे मन में कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगे थे बिकॉज ऑफ दिस।
एंड आई कैन नॉट फॉरगेट माय मॉम। अगर वो अभी हैं तो यहाँ पे अच्छी बात है। मैं बहुत एम्बेरस हो जाता हूँ उनके सामने बोलने से, है ना। She's there. जब वो बोलती है तो हम लोग सिर्फ उन्हीं को सुनते रहते हैं। एंड उनके काम तो बहुत ज़्यादा है ना। कल बहुत दिनों बाद जब वो वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रही थी, आई वॉज देयर इन द मीटिंग एंड आई वॉज लाइक, मैम कितना काम किया है इन्होंने, हमने क्या ही किया है आज तक। हमने तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक, है ना। तो देयर इज अ लॉन्ग वे, बहुत बचा है अभी करना लाइफ में। एंड आई रियली वांटेड कि MSW स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, यू ऑल आर देयर। एक बड़े भाई जैसे मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूँ, प्लीज गो समथिंग विच इज कोर ऑफ सोशल वर्क। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके लिए, आप बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज को छोड़ना नहीं, जो आपका मन है वो करो, लेकिन डोंट फॉरगेट द सोशल वर्क, मेन कोर थिंग, सोल थिंग, जिससे ओरिजिनली किसी का डेवलपमेंट हो, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। And now the face is here. प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी is also very much effective. पहली बार देश में एक ऐसी लहर है कि we are wanting entrepreneurs. 3 साल पहले मैंने बात की होती घर में तो मेरे को तो नहीं मिलता ये मौका। तो ये दिस समथिंग। आप पहले लोग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स इस तरीके की इसमें जाते थे, बट नाउ देयर इज अ नीड ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए रोजगार क्रिएट होंगे। लाइवलीहुड इज इंपॉर्टेंट, तब लोगों को काम मिलेगा। और इंडिया इज अ ब्लेस्ड कंट्री। प्लीज रीड सम काइंड ऑफ ओल्ड स्क्रिप्चर्स फॉर इंडिया, तब आपको इंडिया की ओरिजिनल चीजें मालूम चलेंगी। और उसके अलावा गो थ्रू गूगल समथिंग और रीड समथिंग। देयर आर मेनी गुड स्टोरीज अबाउट ओरिजिनलिटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड संस्कृति, जिससे आपको यहाँ का ओरिजिनल पैटर्न मालूम चलेगा। बिकॉज मुझे तो बहुत ज्यादा I am very much thankful to God and my Gurudev, जिसकी वजह से I have stayed in Baroda a lot. उनकी वजह से ही उनके ही आशीर्वाद की वजह से I have passed something. तो I am very much spiritual on that. I believe in God and believe the energy. I believe कि उनकी वजह से ही we are all running this. और एक बात मैंने कोई मूवी में पढ़ी थी, मूवी में कोई डायलॉग था, बट मुझे बहुत पसंद है कि हम सब इस दुनिया में, इस अर्थ में ना किराएदार हैं, बिना किराए के रह रहे हैं। तो जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो हम अगली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे, वो सोच के हमको काम करना चाहिए। फॉर दैट आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मुझको बेयर किया। आई थिंक 1 घंटा मैंने बोला हूँ यहाँ पर, उससे ज़्यादा ही बोला हूँ। और मैम लोग को पता है मैं बोलने बैठता हूँ तो बहुत बोलता हूँ। बट ठीक है, बट आई एम very very thank you to all of you, and if there is any questions I am ready to shoot on me, तो बहुत अच्छा रहेगा। Yes, कोमल तारा પાસે તો હશે ને સર? કોકોનટ તો કોકોपीट सर कोकोनट का आप ऑयल बनाते हो, तो जी। सर उसका जो दूसरा हिस्सा है उन सब से बाकी चीजों का क्या होता है? There is a waste management plan of each and everything, जो भी आपने वहां पे देखा, जो सॉरी सर, आर यू कंसिडरिंग दोज बाय प्रोडक्ट एज अ वेस्ट? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वेस्ट मैनेजमेंट का भी हम लोग वहां पे देयर इज अ प्लान। जितना भी वेस्ट ऑफ कोकोनट निकलता है, देयर इज अ शेल। कोकोनट होता है बड़ा, उसका जो ऊपर का छिलका होता है वो हमारे पास नहीं आता है, हमारे पास अंदर का डोल आता है बस। ठीक है, हमारे इंडस्ट्री में वो डोल वहां पर आया, एंड वो अंदर का जो शेल होता है उसको हम लोग ऑयल में, उसका ऑयल निकाला जाता है। आफ्टर दैट उसका एक केक बचता है। वो जो केक होता है उसको क्या होता है कि वो कोल्ड प्रेस की वजह से उतना उसके अंदर वो घुमा के उसका पूरा तेल निकाल लिया, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल नहीं बचती है। और वो एक बहुत गर्म पदार्थ होता है, उसको हम लोग खा नहीं सकते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, केटल फीड में यूज करते हैं। पूरी केटल फीड इंडस्ट्री है, छत्तीसगढ़ में भी है, आउट ऑफ छत्तीसगढ़ भी है। तो केटल फीड के लिए वहां से वो चला जाता है और वहां उसका भी फंड कंपनी को मिलता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट वैसे उसका होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी वहां सेक्शंस आपने देखा, या श्योर प्लीज। दैट शेल सर, विच शेल? हमको सिर्फ डोल आता है अंदर का, नॉट शेल ऑल्सो, ओनली अंदर का एक आता है। उसका जो केक बचता है वो जाता है फॉर कैटल फीड के लिए। ओके सर। सर, आपने जो इंसेंस स्टिक्स का वीडियो बताया था, हाँ सर, वो किस चीज में से बनती है? मतलब आप किस चीज में बनवा रहे हो? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, क्योंकि ये मैं भूल गया था ये पॉइंट।
सो हमारा जो अगरबत्ती है, इंसेंस स्टिक है, जिस नेम्ड एज देव पूजा, उसका हमने नाम दिया है, और वो गोबर से बनती है, उसमें चारकोल यूज नहीं होता कहीं पर भी। तो जैसे कि देयर इज अ कंपनी नेम्ड फूल, अगर आपने कहीं सुना होगा तो ऑनलाइन देखा होगा, फूल। तो आई एम वेरी मच कनेक्टेड विद अधिराज, जो फूल कंपनी के डायरेक्टर हैं, और जो फूल जो काम कर रहा है इट्स वेरी कमेंडेबल, बट उसका जो काम है जिस कंसर्न ऑन जो अगर टेम्पल के पास जो खराब फूल बचते हैं, जो पुराने फूल बचते हैं, उनको वो वापस रिसाइकल करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स नहीं है, तो हमको ऐसा, और नहीं बहुत बड़ा हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, तो कि हमको फूल मिले। सो वी हैव, आई हैव मार्क समथिंग कि हम क्यों ना काउ बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ भी जाना चाहिए। जो मेरा अगला एक नया टर्म है, जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, काउ बेस्ड इंडस्ट्री का है। तो हमने गोबर का इस्तेमाल किया, एंड गोबर में भी वी हैव इंड्यूस्ड सम काइंड ऑफ जड़ी बूटी, जैसे कि गूगल एक होता है, उसके बाद जटामासी एक होता है, चंदन के कुछ पाउडर डाले हैं उसमें ताकि उसमें अच्छा सुगंध आए। तो गोबर से वो सारे प्रोडक्ट बनते हैं, अगरबत्ती एंड धूप, जिसके अंदर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है। सर यू सेड कि वो जो वुड्स हैं उसकी जगह पे हम हर्ब्स उगा रहे हैं। यस, तो सर, तो वो जो वुड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं काम तो लग ही रहे थे। कहाँ लग रहे थे? कटने में? सर उससे भी तो काफी चीजें फर्नीचर में यूज होता है, फिर इसके अलावा भी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो सर उसको कौन रिप्लेस करेगा अगर हम सिर्फ हर्ब्स बनाएंगे तो, मतलब उगाएंगे बहुत तो? ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जितना रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है उतना ज्यादा बिकॉज ऑफ बिजनेस इसको ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग फर्नीचर नहीं होगा तो बैठेंगे किस में, लकड़ी में तो बैठा हूं ना मैं। लेकिन जितना हमको जरूरत है उससे ज्यादा हम चीजें काटते हैं, और जो पेड़ काटने के इस्तेमाल के हैं या जलाने के इस्तेमाल के हैं उन्हीं को उगाना, उन्हीं को काटना चाहिए। जो अच्छा खासा भरा भरा हुआ फल दे रहा है उसको काटने की क्या जरूरत है, या फिर जिससे हमको ज्यादा लाइवलीहुड मिल रही है उससे काटने की क्या जरूरत है। और आपको काटना है तो आपको लगाना है और फर्नीचर बनाना है तो कहीं और लगाओ, छत्तीसगढ़ में मत लगाओ, ये मेरा कहना है। एक तो वैसे भी छत्तीसगढ़ अभी मैं किसी को बोलूंगा मेरे साथ चलो काम करें तो आप लोग बोलोगे नहीं नहीं नक्सलाइट एरिया है, नहीं जाएंगे। दिस इज ट्रू। अभी तक छत्तीसगढ़ का जो मिनरल्स हैं, वहां का जो फॉरेस्टेशन है और वहां के जो जंगल है, हम उसका सिर्फ 18% एक्सप्लोर कर पाए, ओनली 18%। कितना परसेंट अभी अंदर कहीं घुमा पड़ा हुआ है हम आज जा नहीं सकते। दिस इज ट्रू। सिद्धार्थ, I also have one question. I mean, it's very intriguing कि तुमको challenges क्या है यार वहां पे, मतलब नक्सल एरिया में जाना डर नहीं लगता था तुमको? I mean, I know you are from Chhattisgarh and you work there and everything is true, You tell me I'm a Delhi person, but I was so scared to going to Delhi. And I knew nooks and corners of Delhi. Okay, so मुझे पता था क्या सही हो सकता है, मुझे ये भी पता था क्या गलत हो सकता है। So how did you overcome all that thing? How did you overcome? My father also very much connected with tribals. उन्होंने वहाँ पे बहुत सारा काम किया है, तो उनका गाइडेंस हमेशा रहा है हमारे लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो उनका जो थ्योरी है वो मैंने क्रैक की है। नक्सल्स आर नॉट फॉर, दे आर नॉट हार्मफुल फॉर नॉर्मल लेमन पीपल, नॉर्मल सिविलियंस। वो हमेशा गुस्सा रहते हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट, वो टुवर्ड्स दी गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, और गवर्नमेंट के जो नेता वेता टाइप के लोग होते हैं उनसे वो बहुत ज्यादा। एंड आई एम ऑलवेज देयर एज अ सोशल वर्कर, है ना, एज अ पर्सन जो उनके साथ मिलके काम करे, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम करे। इसलिए वो हमें ऐसा कुछ हार्म होता नहीं है कभी। ओनली पॉसिबल थिंग वो जो हमारे साथ हुई वो यही है कि इतना हमको पता रहता था कि हम जहां भी जा रहे हैं वी आर ऑलवेज वॉच्ड। हमारी एक एक अकाउंट्स, हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, वो सब उनको पता रहता है। ये तो सच्चाई है, बट इट इज नॉट हार्मफुल। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो कुछ हार्मफुल नहीं होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ठाकुर जी की कृपा, हमको ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने जो भी काम किया वो ऊपर वाले की कृपा से अच्छा ही हुआ। एंड दैट मैंने जो वो कहा था स्वामी जी का कि एक आइडिया आपके अंदर आता है तो वो मांसपेशियों में अपने आप ताकत आ जाती है टू वर्क, और अपने आप आपके अंदर एक एक इनर गट आता है कि यू कैन वर्क एनीथिंग, you are high on life at that time. Yeah, any specific challenges you faced? I mean, you would say कि नहीं ऐसा तो होता ही है, like a takeaway for now I really want to say the truth,
गांव वालों को आदत है वैसा जीने की जैसा वो आज जी रहे हैं। एज अ सोशल वर्कर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसको अदरवाइज नहीं लेना। गांव वालों को आदत है वैसा जीने की, वो उनको उनको आप चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए, वो नहीं चाहते वो चेंज हो जाए। आपकी गरज है, आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और जब आप वहां पे डेवलपमेंट के लिए जाते हैं तो यू हैव टू कन्विंस देम। भले ही आपके मन में ये है कि अरे हम तो आपके लिए कर रहे हैं भैया, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको उनके नखरे उठाने पड़ते हैं। These lines are very negative, but this is true. At that time we have to be very behavioral, आपका बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। You have to be very much communicative, आपकी चीजें गलत इंटरप्रेटेड नहीं होनी चाहिए। When I take ग्राम सभा, कम से कम 100-200 लोग वहां सामने बैठते हैं गांव के, उनके सामने आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, लफाजी भी नहीं कर सकते हैं, और उनको सब कुछ याद रहता है। और एक बिजनेस आपका वहां पे खराब हो गया, आपको रोज फोन आएंगे। एंड एक और बात है, वो रोज इमली लेकर आते हैं, उनको उसी टाइम पे फंड चाहिए, पैसा चाहिए। अगर आपको उस दिन आपने उनको अच्छे से फंड नहीं दिया और आप अगर थोड़ा सा भी इग्नोर कर दिया, तो नेक्स्ट डे अगली बार आपको वो कमोडिटी नहीं मिलेगी। तो इसलिए वी शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर दैट। Anyone has any more questions? सिद्धार्थ, how I wish offline हुआ होता, तुमको मैं जाने नहीं देती। बहुत मजा आता है। I can share with. अच्छा मैम, I really wanted, please please subscribe and follow Konda Nar. I really wanted that. मैं आप लोग को लिंक भेज दूंगा। And Yes. apart from that, please order any one product. I really wanted, है ना? And please share our thought, हमारे products को और ज़्यादा लोग खरीदें, because everything is business. This social entrepreneurship project तभी ये फायदा होगा जब हमको ऑर्डर्स मिलेंगे, हमारा बिजनेस होगा, हमारे महिलाओं को पैसे मिलेंगे। तो उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। This is Somebody was saying something? Yes sir, मुझे आपसे ये पूछना था सर, जो ये सारे प्रोडक्ट है उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन तो होगा ना? लाइक अगर हम लोग पे कर रहे हैं सबको, तो फिर उसका कुछ प्रॉफिट मार्जिन होगा, तभी हम लोग वहाँ के जो लोगों को सैलरी पे कर पाते होंगे। This is because I am from the accounting field too. I have only cracked or I have only designed the whole idea of profit margin on that. Cost accounting वगैरह मैंने ही तैयार की है पूरी उसकी. So there is a 15% manufacturing profit for Udan company, and more than 40% commission we are giving to the distributors. जो आप आज जैसे हम आज 10 रुपए की पार्ले का बिस्किट खरीदते हैं, वो 2 रुपए में उसके पास पहुंचता है। किसके पास? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और फिर वो इस सुपर स्टॉकिस्ट के पास, फिर वहां से वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, सेल्स मैनेजर के पास जाता है, एग्जीक्यूटिव के पास जाता है, फिर वो रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के बाद फिर वो लोग उसको खरीदते हैं, तब वो 10 रुपए का बिकता है। तो वही सेम प्रोपोगेंडा है। द सेम थिंग इज, हम अपना चीजें बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज में, तो 15% प्रॉफिट जोड़ते हैं उसमें, लाइक यानी कितना, 15 रुपया, और उसके बाद फिर 15% प्रॉफिट जोड़ के हम उसके एमआरपी सेट करते हैं प्लस 40%, और फिर उसको आगे भेजते हैं। और सर टारगेट ऑडियंस क्या रहता है इन प्रोडक्ट्स के लिए? मतलब लाइक ये कहाँ सेल होते हैं मोस्ट प्रोबेबली? हमारे ऑनलाइन सेल हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यही सेम चीज हम वी हैव अ मॉडर्न ट्रेड हमने स्किल तैयार किया है पूरा, जिसमें वी हैव अ सुपर स्टॉकिस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, जो हम बना रहे हैं, धीरे करके इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। उनके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, और वो हर एक सिटीज में जितने अच्छे बड़े स्टोर्स हैं, वी आर टारगेटिंग ऑन अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ौदा, छत्तीसगढ़ में रायपुर, महाराष्ट्र, पुणे एंड नागपुर। ये कुछ ऐसी सिटीज हैं जिनको हम सबसे पहले अभी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जहां पर जितने भी बड़े अच्छे सुपर स्टोर्स हैं, वहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे लेके जाएंगे, और फिर नॉर्मल लोग उसको खरीद सकते हैं रिटेल शॉप में। तो सर अभी इस प्रोडक्ट का इतना मार्केटिंग नहीं हुआ है, मतलब लाइक मैं अभी यहाँ पे रहती हूँ, तो मुझे भी इस प्रोडक्ट्स के बारे में इतना आइडिया नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? बड़ौदा में। बड़ौदा में कहाँ? सर मकरपुरा में पक्का? मकरपुरा में किशोर मॉल है।
वहां पे मिलेगा प्रोडक्ट जल्दी। ओके सर। Senior students, Priyanka, you are mute. अर्चना मैम, आपके वर्ड्स प्लीज, आप कुछ बोलना चाहते थे towards the end. Yes, definitely. I still remember the day when Siddharth came for admission. कि मुझे MSW में एडमिशन लेना है, and it was my second batch. झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत परेशान किया है, बहुत बहुत ज्यादा। आज भी मतलब ऐसा है कि कान पकड़ूं, बट यू ऑल्सो मेड मी वेरी प्राउड बाय योर वेंचर्स। मैं देखती रहती हूँ सोशल मीडिया पे, फॉलोइंग यू। तुमने और अनीता ने, अनीता है क्या मीटिंग में? नहीं है। दोनों लोगों ने मिल के मुझे बहुत परेशान किया है। हर क्लास में कोई ऐसा क्लास नहीं होता था जब मैंने तुम दोनों को याद ना किया हो। क्लास में आना और सबसे पहले पूछना है कहाँ है, और फिर पता चले पीछे के दरवाजे से धीरे से आके बैठ जाना क्लास के अंदर। फिर भाई, और एग्जाम तो री एग्जाम दे दे के पास करिए। ऐसा नहीं टैलेंट नहीं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड। खुद का एनजीओ पहले से ही चला रहे थे। I also remember the day when your mom came and met. I was so impressed by her work also, the kind of work she is doing for children. I think she is here. I really wanted मैम कि अगर वो कैमरा ऑन करेंगी क्या अपना आई is here. Yeah, she's there, but she's on hold maybe. Yeah, if everybody can put on the cameras, it will be. Yeah, I remember एक एलुमनाई का मैंने मीट कॉल किया था जिसमें आई कॉल्ड रॉबिन, एंड रॉबिन मेरे को बोलता है मैम मुझे कहाँ बुला रहे हो, आप ऐसा करो सिद्धार्थ को बुलाओ। मैंने कहा एलुमनाई में मैं सिद्धार्थ को बुलाऊंगी, पर सिद्धार्थ को कम टाइम देने से कोई फायदा ही नहीं है। सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। इस वक्त मैं 3 लोगों को बुला रही हूँ, सो आई कैन नॉट कॉल सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ आई विल ऑर्गेनाइज अ फुल फ्लेजेड प्रोग्राम जहाँ 1 घंटे तक सिर्फ सिद्धार्थ बोले। हर प्रेजेंटेशन में भी जहाँ बाकी बच्चों को 10 मिनट 15 मिनट लगते थे, सिद्धार्थ आधा घंटा तो ले ही लेता था। इवन जब बोला उसका टाइम खत्म हो गया, फिर भी he continued to speak and explain whatever work he had done. I remember his fieldwork presentation that he had done with Amit sir, and the kind of work that he had done. Amit is still date very much impressed by the work done by Siddharth, और हमेशा याद करते हैं कैसे हैं क्या है। He's also impressed with Amit Wasawa. Yeah, he's also impressed by Nadeem. Last time also he was asking about Nadeem के कहाँ है, क्या कर रहा है। मुझे बीच में मिला भी था। I think आप लोग अमित सर से कहीं और भी मिले थे। Recently he said I met you all. So जहाँ जहाँ काम किया है वहाँ लोग याद करते हैं, अर्चना जोशी मैम याद करते हैं। एंड बाकी बच्चों के लिए मुझे बताना बड़े गर्व की बात है कि सिद्धार्थ को अपना फर्स्ट प्लेसमेंट मिला था अपने रिसर्च प्रेजेंटेशन में। तब उसने एग्जाम मतलब सिर्फ थीसिस भी सबमिट नहीं की थी, ओके, स्पाइरल थीसिस सबमिट की थी, और उसका वाइवा हो गया था उसके ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रेजेंटेशन इन दैट रिसर्च वाइवा he was selected for his job and he got the placement there itself. वाइवा खत्म होते ही मैम ने सिद्धार्थ को हायर कर लिया था। मतलब मेरे को उसके रिजल्ट में भी इंटरेस्ट नहीं है, क्या रिजल्ट है, पास है फेल में कुछ नहीं जाना, मुझे ये लड़का चाहिए। नहीं, कभी नहीं। अर्चना मैम बेसिकली गाइस ऑल, अर्चना मैम इज दीपक फाउंडेशंस डायरेक्टर एंड इज अ वेरी बिग पर्सनालिटी एंड वेरी इंस्पिरेशन फॉर मी। आई एम रियली सॉरी उनका नाम मैं लेना भूल गया, बट वो मैम इज समथिंग जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। आई हैव लर्नड अ लॉट इन दीपक फाउंडेशन कि किस तरीके से एक नींव बनाई जाती है फॉर एनी सोशल डेवलपमेंट थिंग, किस तरह से एक एनजीओ को कॉर्पोरेट लेवल पे लेके जाया जाता है, किस तरह से एक एक्सपेंसेस को अकाउंटेबल किया जाता है। दैट ऑल आई हैव लर्नड इन दीपक फाउंडेशन। मैं मुझे बहुत छोटी सी जॉब के लिए लिया था मैडम उन्होंने। जब मैं छोड़ते निकलता गया, आई यू नो मेरे अंडर में कम से कम 3 डिपार्टमेंट्स थे, 3 से ज्यादा दीपक फाउंडेशन के अंदर। और अर्चना मैम यानी अर्चना जोशी मैम के बारे में मुझे एक और चीज बतानी है कि साल भर मैं सिखाना चाहती थी सिद्धार्थ को कि फॉर्मल कपड़े पहना करें, ये कुर्ता पजामा वाला लुक नहीं चलेगा। बिलीव मी, दीपक फाउंडेशन ज्वाइन करने के बाद जब वो मुझसे पहली बार मिलने आया
तो सिद्धार्थ फॉर्मल कपड़े पहनकर आया था। मैंने कहा चलो एक अर्चना ने ना सही, दूसरी अर्चना ने सिखा दिया तो फॉर्मल कपड़े पहने कैसे जाते हैं। मेरे जीवन में 3 अर्चना है। My mother's original name is Archana Thanvi. I am aware about that. मैडम सिद्धार्थ ने फॉर्मल पहनना थोड़ा सा ट्रांसपेक्स सिलॉक से भी सीखा है Yes, when we were yes. working together in Ekalbara. बट वो इतना ज्यादा नहीं सीख पाया था क्योंकि वहां से भी कंप्लेन तो आ ही रही थी कि ट्रांसपेक्ट में भी एक कुर्ता पजामा पहनकर आता है और ऊपर से हेडफोन लगाकर आता है, ये शिकायत तो मेरे पास आ चुकी है. So but anyways, all said and done, in today's date I can say that I'm really very proud of you. And I wanted more of my senior MSW students to ask question, because at this time they are studying this course of Introduction to Social Entrepreneurship or Introduction to Entrepreneurship. But anyways, I do believe that your session has enriched all the junior and senior students. Over to you, Venus. Thank you so much, sir, for giving us with your valuable knowledge and information and sharing your words and your experience. It's truly inspired us to work in future, and I'm really glad personally we met you, and we are glad to have such a wonderful personality among us. I'm thankful to our respected expert of the day, Mr. Siddharth Pandey sir, who graced us with his presence and guidance. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Mitwa Desai to deliver a vote of thanks on behalf of us. Yes, Mitwa, over to you. I would like to take the opportunity to thank you for taking out time from your busy schedule to be the guest speaker. Your wise words have helped magnify our cause in the best possible ways. All thanks to your enlightening words that inspired all of us. It was a great pleasure to have you, sir. And you spoke for the topic social entrepreneurship. It was quite apparent like how each one of us was engrossed by your talk. So there is so much more to learn from your knowledge and experience. I wish you great health and success for all the future endeavors. Thank you so much, sir. Thank you, Mitwa. Thank you. Can we have all videos on for a group photo? जो बच्चे हैं जिन्होंने interest Yeah. Please have a photograph. At last, ma'am, I really want to say one more thing. I really want to. This is an offer for all of you. Anybody wants any internships or any job? I'm also offering a job for my plant, for my ideas in Gujarat and Chhattisgarh both. So there is a stipend related internships too for all of you, for especially Navratna students. I really wanted that. कि आप अगर कोई भी करना चाहता हो and really want to work, कुछ सीखना भी अगर चाहते हैं तो for सीखने के लिए भी you can come over there, for a small span of time, like for 1 month, for 3 months, like for this you can come over there, you can see a lot of things, आप उसको practical approach दे सकते हैं, you can instigate your own ideas, you can share with me, you can share with my team. So I will be privileged, मैं भी आपसे सीखने मिलेगा, because I am very much into new minds. जिस तरीके से अपन काम करते रहते हैं ना बहुत ज्यादा, तो आपका बहुत इनोवेटिव माइंड गायब हो जाता है, वो मैं नहीं चाहता हूँ कभी भी. तो अगर कोई भी ऐसा चाहता हो तो आई एम वेरी मच आई एम इनवाइटिंग यू ऑल, डोंट वरी अबाउट दैट. Next rural camp at Konda. Do that, ma'am. Next rural camp at our Kondagaon. all arrangements are on mine. पक्का. ये कोरोना का सीन थोड़ा ठीक होने दे, मेरे को तो कब से करना है रूरल कैंप. It's very interesting with that. Another thing I would want to share while you were sharing this with us, another thing which I would like to tell you is a lot of what you are doing is required even in Dediapada, buddy. Dediapada नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आती है CSR की. काफी सारे
वहाँ पे हम लोग SFT के साथ किए थे रूरल कैंप, वॉश पे और यूनिसेफ के प्रोजेक्ट पर कर रहे थे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कैसे वो वाटर ठीक है नहीं है, एंड थोड़ा बहुत पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन फॉर किड्स एंड ऑल दिस थिंग. दोज आर अनएक्सप्लोर्ड एरियाज सिद्धार्थ. इफ यू वुड वांट टू हैव योर टीम देयर एक्सप्लोर. वहां पे भी यही चैलेंजेस है सिद्धार्थ. आधा गांव रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आता है, आधा गांव इको फॉरेस्ट जोन में आता है, तो वहां एक लकड़ी भी आप उठा नहीं सकते हैं. Lot of medicinal plants available there, but they don't know how to go there, go about Any doing NGO things is in a lot working of. in ground, मैम? वहाँ पे कोई NGO काम कर रहा है on ground में? श्रॉफ में है, और सर रिलायंस के कुछ देखे थे मैंने बोर्ड्स जहाँ पे उन्होंने आंगनबाड़ी में और Like I have जो जिसका मैं नोडल ऑफिसर हूँ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, I need one more partner with me always. I'll be the technical agency for them and one on ground agency will be for implementation. तो हम गाइडेंस करेंगे पूरा किस तरह से अपन काम करेंगे वहां पर, एंड द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी विल बी द इम्प्लीमेंटिंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. तो ऐसा कुछ श्रॉफ अगर पता है मुझे करता है वहां पे. श्रॉफ के थ्रू हम गए थे, उसके आगे मुझे नहीं पता है. So मैं ऐसा होगा तो I'll connect you to Shroff or somewhere. I mean, you can just have a look at it. I mean, explore your opportunities. I don't know उनका focus area क्या है वहाँ पे. Livelihood है या क्या है? हम लोग basically personal health and hygiene and wash पे करें project. वहाँ पे पानी की दिक्कत तो है ही. पानी वहाँ पे जो तुम बता रहे हो ना, ऐसा ही होता है कि लोग क्या होता है जब समर्स होती हैं, पानी की दिक्कत होती है, दे ऑल रश टू अंकलेश्वर. वहां पे वही पेटी जॉब्स, डेली वेज वर्कर्स, and they are more like produce to consume than produce to sell types. So you can probably explore. I don't know, but this is what your opportunities, what I saw there, probably what you were telling me, I could connect those things. So maybe we can offline take that up more. Yeah. Definitely. Thank you so much, Siddharth. From the Siddharth I know to this Siddharth, I resonate with Archana ma'am. I feel so proud of you. Thank you, ma'am. I go and say ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ऐसा लगता है मेरे को. अब रॉयल्टी वैसे शताब्दी मैम की है, पर हमें भी लगता नहीं हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है. You make us really proud. Lastly, I really want to apologize on everything because एक होता है मैम, nowadays I'm not very much connected. मैं बहुत सारे जैसे आंसर्स नहीं दे पाता हूँ. I'm really sorry for phone calls. उसके अलावा I'm just saying I'm really sorry for everything I've done. Oh no. That made you special, है ना? चलो. Thank you very much. I'll share this recording with you in some time, है ना Siddharth? Ma'am, I'll send you the links of our all social